Hey guys, I'm Avishi Jain and let's begin with lecture number 2 of Java for Beginners. So, in this video, we are going to deal with the principles of OOP language, wherein you are talking about abstraction, encapsulation, polymorphism, inheritance. And we are going to deal with what is Java. So, let's begin. So principles of OOP language as I taught you in the first class कि 4 टाइप के principles होते हैं OOP language के. The first is your abstraction, second is your encapsulation, third is your polymorphism and fourth is your inheritance. मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करी हूँ, इसलिए आप अपने साथ साथ जॉट डाउन करते रहेगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये. So let's start with abstraction. The act of representing essential features without including the background details or explanation. So abstraction का मतलब क्या होता है? Essential features को represent करना. Essential मतलब जो important features हैं उन्हें represent करना without including the background details, मतलब जो पीछे जो hidden details हैं उनसे कोई मतलब नहीं है. आप अपने जो एसेंशियल जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो बिना देखे कि पीछे क्या चल रहा है. जस्ट लाइक आप गूगल चलाते हो तो आप डायरेक्टली जो सर्च करना होता है वो करते हो, बट आपको उसके पीछे जो प्रोसेस है जिस तरीके से वो वर्क कर रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं होता. एग्जैक्टली द सेम वे एब्स्ट्रैक्शन वर्क्स. You can also write it is a named collection of attributes and behavior. Attributes are by the data members and behavior is the function. So they are relevant to modeling a given entity for some particular purpose. They are relevant to modeling मतलब ये किसी तरीके से represent करते हैं इनको. Okay, now we move on to the second principle which is encapsulation. So it is wrapping up of data and functions into a single unit called class, which means that you have got your data members and your data functions, and these both of them are being wrapped up in a single unit called class. So wrapping up of your data members and the data functions जो कि methods होते हैं, and members क्या करते हैं, characteristics से deal करते हैं. So data members and your data functions together wrapped up in a single unit which is called a class. Okay, now encapsulation is a way to implement abstraction. Now how can encapsulation implement this abstraction? मतलब कि encapsulation जो है वो आपके abstraction से interrelated है, and ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकैप्सुलेशन के थ्रू आप एब्स्ट्रैक्शन प्रमोट कर सकते हो. इनकैप्सुलेशन में आप डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट को क्लास में कंबाइन करके रखते हो, एंड वही क्लास जो होता है उसके अंदर डिटेल्स जो होती हैं वो हिडन रहती हैं. मतलब जिस पे आपने वर्क किया वो किसी आउटसाइड सोर्स वाले को नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको पता है आपने उसके अंदर क्या किया है. Exactly, so it hides the details of implementation of an object. Object पे हमने जितनी भी implementation की है उनकी details hidden रहती हैं. आपको बाहर से जो class दिखता है वही दिखता है. That means encapsulation is promoting abstraction. Next, moving on to polymorphism. So poly word, it means more than one, and your morphism, morph का मतलब होता है form. So to exist in more than one form is called your polymorphism, and it is also the process of using a function for more than one purpose. मतलब आप एक function को एक से ज़्यादा purpose के लिए use कर रहे हो जो कि हर object के लिए अलग तरीके से work करेगा. वो जब आप आगे function chapter पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. Till then remember कि polymorphism क्या होता है. एक तरीके के function को हम अलग अलग तरीके से वर्क करवा सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए. ओके, नाउ मूव ऑन टू इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस मीन्स जैसे वर्ड, देखो मैंने आपको बताया था कि जावा जो होती है इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, एंड ये आपके रियल वर्ड से बहुत सिमिलर होती है. सो नॉर्मल वर्ड में हम क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से
जो उनकी जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो फीचर्स होते हैं हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो उसी तरीके से जावा में भी एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का अक्वायर करता है प्रॉपर्टी, अक्वायर या इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज पेरेंट क्लास। मतलब कि कोई पेरेंट क्लास होगा, पेरेंट ऑब्जेक्ट आप ले लो चलो, तो पेरेंट ऑब्जेक्ट से जो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड्स एग्जैक्टली यूज्ड इन जावा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट नहीं बोला जाता है, सब क्लास बोला जाता है और पेरेंट क्लास बोला जाता है या सुपर क्लास बोला जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि पेरेंट ऑब्जेक्ट से जैसे कोई भी चीज़ चाइल्ड ने इनहेरिट कर दी, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, नाउ फीचर्स क्या इनहेरिटेंस के, हम इनहेरिटेंस यूज़ तो करें बट उसका काम क्या होगा जावा में। सो इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ रीयूजेबिलिटी। मैंने आपको ऊप लैंग्वेज के भी एक यूज़ में बताया था कि इट इन्हांसेस द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। आप एक ही कोड को लिख के बार बार यूज़ कर सकते हो अलग अलग जगह पे। सेकेंडली, न्यू क्लासेस कैन बी डिराइव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉपर्टी तो इनहेरिट कर रहे हो, आपके क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो रही। न्यू क्लास जो है वो आपकी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पुराने वाले क्लास से ले रहा है। दैट मीन्स नया क्लास जो है उसमें कुछ अलग से आपको बनाना नहीं पड़ेगा पूरा, न्यू क्लास सिर्फ एक प्रॉपर्टी उसकी अपने में ले रहा है। देन द न्यू क्लास हैज़ गॉट द फीचर्स ऑफ बोथ द क्लासेस, क्योंकि न्यू क्लास है उसमें तो आप उसकी भी चीज़ें बना सकते हो, राइट। एंड साथ साथ आप उसके पेरेंट क्लास की भी चीज़ें ले सकते हो क्योंकि आप वो तो इनहेरिट कर रहे हो। जस्ट लाइक अगर आप मैंगो और एप्पल को कंपेयर करो तो मैंगो ने एप्पल से क्या एसोसिएट किया कि एप्पल भी स्वीट है एंड वो भी स्वीट है। बाकी मैंगो की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि मैंगो येलो कलर का है। दैट मीन्स उसने दो चीज़ें ले ली, एक अपने पेरेंट क्लास की भी ले ली और एक अपने खुद की भी। Now additional features can be added to an already existing class without modifying it. Modifying मतलब हम किसी चीज़ को change कर रहे हैं। So additional features can be added to an already existing class। कोई class है जो already exist कर रही है, हम उसमें अलग से कोई features add up कर सकते हैं बिना उसमें changes करे। Okay, so these are the 4 principles of OOP language. Now let's come on to what is Java. राइट अच्छा, उससे पहले एक नोट देख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज दैट क्लास इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मैंने आपको आगे भी बताया था कि क्लास के अलग अलग नाम होते हैं। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड इट इज़ अ रेफरेंस डेटा टाइप ऑल्सो। सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कैसे, अभी हमने पढ़ा कि क्लास के अंदर प्रिंसिपल ऑफ ऊप क्या फॉलो होता है, एब्स्ट्रैक्शन। तो क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि क्लास डील्स विद द डेटा थ्रू द फंक्शंस। हम कोई भी डेटा लिख रहे हैं तो उस पर डेटा मेंबर्स फंक्शन से ही तो वर्क कर रहे हैं, तभी तो एक क्लास के अंदर एक डेटा मेंबर और एक डेटा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तभी एक क्लास जो है वो डेटा से कैसे डील करता है, थ्रू द फंक्शंस। द डेटा मेंबर्स आर नॉट विजिबल टू बी हैंडल्ड एक्सटर्नली। मतलब कि जो डेटा मेंबर्स क्लास के अंदर हैं वो अंदर ही उन पे वर्क करता है, बाहर से कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उन पे वर्क नहीं करती है। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू व्हाट इज़ जावा। हम लोग पूरे टाइम पढ़ तो रहे हैं कि जावा है, ये है, ऊप है, बट एग्जैक्टली जावा है क्या। तो जावा जो है आपके बहुत सारी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। सी है, C++ है, जावा है, उसके बाद में पाइथन है, स्क्रैच है। तो उनमें से जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होती ही है, साथ साथ इट इज़ अ प्लेटफॉर्म। ओके, अब ऐसा क्यों है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इसलिए है कि आप उसमें अलग अलग टाइप के कंप्यूटर एप्लीकेशंस को लिख सकते हो। जो आपके कोई भी एप्लीकेशन वर्क कर रहा होता है उसके पीछे जावा ही होती है। आप जावा के कोड से ही उन एप्लीकेशंस को बनाते हो। आपने कभी भी देखा होगा, आप गूगल पे कुछ टाइप कर रहे हो एंड जब कुछ एरर आता है तो जो भी लिखा होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ जावा स्क्रिप्ट। एंड प्लेटफॉर्म क्यों होता है जावा, क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करता है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलग अलग ऐप्स अपने बना सकते हो थ्रू जावा, राइट। सो Java is also a platform which is used to design, to deliver
and run highly interactive, dynamic and secure application on network computer systems. तो इसका मतलब क्या है कि जावा के थ्रू हम बहुत हाईली इंटरैक्टिव, जिससे आप यूज़र एंड कंप्यूटर अच्छे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, डायनेमिक है, बहुत अच्छे से रन हो रहा है, एंड सिक्योर एप्लीकेशन आप बना सकते हो, क्योंकि जावा एक इनकैप्सुलेशन को भी यूज़ करती है. जैसे मैंने आपको बताया था, इनकैप्सुलेशन मतलब जितनी डिटेल्स हैं वो आपकी हिडन है, वो बाहर वाले को नहीं दिखेंगी, तो सिक्योर भी है. एंड ये सब आपके वर्क किस पे करते हैं? नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम्स पे, राइट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके जावा के कितने टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं. एक जावा एप्लेट होता है, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस. यू गोइंग टू डील विद जावा बाइट कोड, JVM, जावा लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ब्लूजे क्या होता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.